Okay, good morning, sixth standard. So today we are going to start with the other part of social studies, that is civics. So we are doing first chapter of civics, that is diversity. It is on page number 190. So we have done two chapters from geography. So we have done two chapters of geography. Now we are starting with civics. After doing two chapters of civics, we'll be going towards history. So first chapter is diversity. So have you ever seen when two roads are dividing, there is written on a board that diversion means alag, divided, different. So diversity means different. And if we talk about our country India, there are all the things are different only. The states are different. We have 28 states. Languages are different. Dress are different. We have seen different dresses of different state also. Religions are different. Everything is different. So first, the content is meaning of diversity. So diversity means different. Different, it can be language, it can be food, it can be dress. So the proper definition of diversity is variations in religion, language and culture called as diversity. वेरिएशन मतलब भिन्नताएं, रिलीजन अलग हो, लैंग्वेज अलग हो, कल्चर अलग हो, इन सबको मिला के क्या बनती है? डाइवर्सिटी. सो व्हाट इज डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी इज़ अ वेरिएशन इन रिलीजन, लैंग्वेज एंड कल्चर. नेक्स्ट टॉपिक इज़ यूनिटी. यूनिटी मीन्स, ना यूनिटी आप लोगों ने बहुत दिखाई होगी. क्लास में मस्ती करते हैं और जब मैम पूछती होगी कौन मस्ती कर रहा है, तो भैया हमारा फ्रेंड है, हम क्यों उसका नाम बताया, तो हमने बताना ही नहीं है. नहीं किया होगा आपने फिफ्थ स्टैंडर्ड में ऐसा काम. सो दिस शोज द यूनिटी. येस, यू लाइक योर फ्रेंड सो मच दैट यू आर नॉट टेलिंग इट टू टीचर, क्योंकि आपके दोस्त को पिटाई पड़ जाएगी. सो दैट इज़ वाई वी आर नॉट सेइंग इट. सो इंडिया भी क्या है? यूनाइटेड है. Lot many different cultures are there, languages are there, but still they are united. They are called as Indians. They are not called as Punjabi is a country. They don't call it Punjab a country. They don't call UP a country. They are the states. बहुत सारी स्टेट्स मिला के क्या बनी? एक कंट्री बनी. और वो सारी स्टेट्स क्या अलग है, बट स्टिल कंट्री क्या है? एक है. सो उसी तरीके से अगर आपने अपने फिंगर्स देखेंगे, अपने हाथ के सब अलग अलग फिंगर्स हैं. एक थंब है, इंडेक्स है, मिडिल है, रिंग और लिटिल फिंगर्स हैं. सब अलग अलग हैं, है ना? दीज आर डिफरेंट फिंगर्स, बट व्हेन यू कंबाइन दिस दे आर यूनाइटेड एंड बिकम्स अ पंच. इससे आप पंच बना सकते हैं क्या? इससे बना सकते हैं क्या? नो. बड़ी सारी जब कंबाइन होती इट मेक्स अ पंच. सो दिस इज यूनाइटेड. इट कैन बी कॉल्ड एज यूनाइटेड. इट इज़ कॉल्ड एज यूनिटी. So it is called as unity. Now first is diversity, second is unity. So एक और term बनता है, that is unity in diversity. Unity in diversity means अलग अलग होके भी एक है. Now I'll be showing one thing to you people that is there at my home. ठीक है? Now as you can see here, it's a picture on my wall. I have drawn a picture here. Okay. You can see flowers are there. You can see a tree is there, squirrel is there, Donald is there, और grass is there. ये सारा क्या डिफरेंट है? सब अलग है. फ्लावर्स अलग है, घास अलग है, एनिमल्स अलग हैं, हर चीज़ अलग है. बट क्या है, जब हमने इसको एक दीवार में बनाया, इट इज़ कॉल्ड अ पिक्चर. अलग होके ये क्या है? एक चीज़ बना रहे, दैट इज़ कॉल्ड अ पिक्चर. ठीक है? सो दिस इज़ द डाइवर्सिटी, बट दे आर in a single frame, that is called as unity in diversity. So why there is a reason? ये diversity क्यों है? अलग अलग सब क्यों है? Because of tradition, regional difference, food pattern and religious belief. तो diversity क्यों है? क्योंकि हमारे traditions अलग हैं. हर एक आप देखोगे रिलीजन में अलग अलग चीज़ें हैं. ठीक है? Now regions अलग है. region मतलब we can say कुछ स्टेट्स में लोग धोती पहनते हैं, कुछ में आप पैंट शर्ट पहनते हैं, कुछ रीजन में लोग टर्बन पहनते हैं. सो ये क्या है? रीजनल डिफरेंस. फूड पैटर्न तो आपको पता ही होगा. एमपी में क्या है? दाल बाटी. बिहार में क्या है? लिट्टी चोखा.
साउथ में क्या है, इडली सांभर खाया है ना, आपके फ्रेंड्स लाते होंगे अलग अलग, जो अलग अलग स्टेट्स के वो टिफ़िन लाते होंगे, तो इन्जॉय करते हैं ना सबका टिफ़िन, क्या सबके टिफ़िन एक ही होते हैं क्या, अलग होते हैं। सो वी इन्जॉय, दिस मेक्स आवर फ्रेंडशिप ऑल्सो स्ट्रांग। तो उसी तरीके से ये सारी चीज़ें क्या बनाती है, हमारे देश को यूनाइटेड बनाती है, हमारे जो देश की यूनिटी को स्ट्रेंथन करती है। रिलीजियस बिलीफ, जो हमारे जितने भी आपने देखे होंगे रिलीजन है, हिंदू मुस्लिम सिख एंड क्रिश्चियन, जो अलग अलग भगवान है ना, मगर स्टिल जब भी कोई बीमार होता है हम क्या करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। सो सबकी प्रेयर्स अलग है, बट सब कहाँ पे रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, और ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, इंडिया को यूनाइट बनाती। सो रीजंस डाइवर्सिटी के क्या क्या हैं, ट्रेडिशंस, हमारे कल्चर अलग हैं, रीजनल डिफरेंस, मतलब हर एक स्टेट के अलग अलग ड्रेस कोड्स हैं, फूड पैटर्न, खाने का डिफरेंस है, और रिलीजियस बिलीफ, जो हमारे जो रिलीजन है वो भी अलग है। इसीलिए वो क्या है, ये सारे रीजंस हैं जिससे कि हमारे देश में क्या है, डाइवर्सिटी है, भिन्नताएं हैं, ठीक है। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया, डाइवर्सिटी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। सो डाइवर्सिटी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फर्स्ट पॉइंट इज लैंग्वेज। नाउ आप लोगों को पता होना चाहिए, इट इज़ इन 10th स्टैंडर्ड ऑल्सो, दैट हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर देयर इन इंडिया, देयर आर 22 लैंग्वेजेस। 22 में जो 1 है दैट इज़ हिंदी। हिंदी क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारी। हिंदी जनरली नॉर्थ में बहुत सारे लोग बोलते हैं, नॉर्थ मतलब जो नॉर्दर्न साइड में, वहाँ के लोग जनरली क्या बोलते हैं, हिंदी ही बोलते हैं। बट साउथ वाले हिंदी बोलते हैं क्या, नहीं, साउथ वाले अपनी लैंग्वेज बोलते हैं और इंग्लिश बोलते हैं। सो दैट इज़ वाई हमारे पास कितनी लैंग्वेजेस हैं, 22, हिंदी को मिला के 22 लैंग्वेजेस हैं। सो ये क्या शो कर रही हैं, डाइवर्सिटी शो कर रही हैं कि इतनी सारी लैंग्वेजेस होने के बावजूद भी वी आर यूनाइटेड। नाउ कभी आपने देखा हो, सो अ न्यू वर्ड इज देयर इन दिस ऑन पेज नंबर 192, डेलिकेट्स। दीज वेरिएशन इन लैंग्वेजेस आर कॉल्ड डेलिकेट्स। नाउ आपने देखा भी होगा, है ना, फॉर एग्जाम्पल कभी जो साउथ के लोग होते हैं आपसे जब बात करते हैं तो आपको हंसी आती है कि नहीं, द वे दे यूज टू से, हमने कहा नकाया, दिस इज द लैंग्वेज दे यूज टू से इन हिंदी, तो आपको यू फील गुड। But when in a situation when the people of South, you can't say the things in Hindi, so there are people who used to convert the things, है ना, convert the things for you people so that you can learn the things in a get the things in a proper way. So that point is not related to this, but I am saying it, ठीक है। So in India there are 500 delegates in different languages, इतनी सारी variations हैं। Now religions, there are many religions in India, you must be knowing it. Now for your homework I just want to tell you that you have to name some different languages. आपको different languages के नाम लिख के देने हैं मुझे, ठीक है। लैंग्वेज लाइक महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, यूपी में भोजपुरी बोली जाती है, यू हैव टू नेम, जितना भी आपको आता हो उसके नाम लैंग्वेजेस के डिफरेंट लिख के देने हैं। और जो हमारा रिलीजन प्रैक्टिस होता है इंडिया में उसके भी नाम लिख के हम मुझको देने हैं। सो रिलीजन्स का मैनी रिलीजन्स इन इंडिया, और दे हैव डिफरेंट बिलीव्स एंड फेथ्स, है ना, दे फॉलो रिचुअल्स टू प्रे एंड प्रे टू गॉड, दे हैव एवरीथिंग डिफरेंट, बट स्टिल दे आर इन अ कंट्री कॉल्ड इंडिया। Festivals, there are lot different festivals. For Hindu it is Diwali, Holi. For Muslims it is Eid, and for Christians it is 25th, आपने देखा है 25th December हम सेलिब्रेट करते हैं, क्रिसमस डे। सो एवरी रिलीजन हैज़ देयर फेस्टिवल ऑल्सो, बट हम एकदम इंजॉय करके वो सेलिब्रेट करते हैं। सो आई थिंक देयर इज़ नथिंग टू एक्सप्लेन यू फ्रॉम दिस चैप्टर। आई थिंक ये आपको वर्बली पता ही होगा, सो दैट इज़ वाई आई एम जस्ट टेलिंग यू लाइट थिंग्स फ्रॉम दिस चैप्टर, ओके। सो देयर इज़ नो नीड टू रीड द थिंग्स जो आपको पढ़ना होगा, दैट आई विल बी टेलिंग यू। सो टिल 122 आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, द रेस्ट is the thing which you have to read, that will be doing in the next lecture. Thank you class.